So this refers for a system that would ensure that individual interest of each stakeholder is protected and served. Then the collective interest of all the stakeholders is protected and served, and there is no situation in which anyone can observe anyone else's right. So this is the basic perspective of the corporate governance, that the individual interest of all the stakeholders is protected, then the collective interest of all the stakeholders is protected, and then the rights of one stakeholder or the stakeholders is protected, but not at the expense of the other stakeholders. So as far as this corporate governance is concerned, we can define it like this, that corporate governance refers to the mechanism used to control and direct the affairs of a corporate body in order to serve and protect the individual as well as the collective interest of all the stakeholders. So this is the mechanism through which we can control and direct the different operations of any business organization so that the collective and individual interests are not only served, but they are also protected. Any question from this definition, Ji? I think whatever we have discussed till now, this is the crux of the complete discussion. Hanji, everyone is here? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is the definition of the author of the book, Professor Safdar Ali Bhatt. Then the governance and management, how these two terms differ. Does the governance includes management or does the management includes governance? Yes, sir. What is your perspective? Any one of you? सर जहाँ तक गवर्नेंस इंक्लूड्स मैनेजमेंट जो है वहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं हम्म। लेकिन मैनेजमेंट इंक्लूड्स गवर्नेंस ये नहीं हो सकता वैसा। ठीक है, और इनमें कोई डिफरेंस भी है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट और इट्स द सेम थिंग? सर, गवर्नेंस में There's बेसिकली little रूल्स diff- को गवर्न किया जाता है, फिर उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी तो सारी हायर अथॉरिटीज तो नहीं आती ना, मैनेजमेंट में भी जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, जस्ट लाइक सपोज करते हैं हम, तो वो उसके नीचे भी तो कुछ सबऑर्डिनेट होते हैं जिनको वो लीड कर रहा होता है। तो एज आई थिंक मेरा ओपिनियन क्या है कि मैनेजमेंट भी थोड़ी बहुत गवर्नेंस इंक्लूड होती है। अच्छा, ठीक है जो है इसमें। जी रियाज साहब। So there's a little difference between two, जी। although in certain cases they overlap. हम्म। Governance, board of governors, they formulate policy, they give guidelines for the management. Very In right. management, they have to follow the policy of the board of governors, and they have, in the light of policy, they have to manage their affairs. Very right. Like you have a general manager of the plant. He can formulate SOPs, procedures, but he cannot formulate policies. Policy board of director देगा. Very good. I think this is the difference. वेरी राइट। मैनेजमेंट का काम है इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग जो है वो जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करेंगे? मैनेजर्स करेंगे। वेरी राइटली सेड, दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव। देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन the management and the governance. First is the basically when we talk about management, it comprises of four functions: planning, organizing, leading, and controlling. So as far as planning is concerned, managers are involved in the preparation of the plans, but its approval is given by the board of directors. Likewise, in case of the leading function, as Riaz Sab said, the board of directors, they provide the overall leadership, they provide you the guidance, they provide you the way forward.
but the managers, what they basically do, they implement those plans. So all the planning is basically done, or the guideline is basically being given by the board of directors, and that is being implemented by the managers. And in case of organizing, the manager is responsible for the task division and their usage of the resources that has been allocated to them. But as far as the board of directors are concerned, they are responsible for the arranging the resources of the business organization. For example, and if you are going to start a new project, you are in requirement of the funds. So from where the funds would be acquired, that would be decided in the board meeting. Either they would be going for equity financing, they are going to issue more shares, or they will go for debt financing. And within the debt financing, either they will ask any lender, any financial institution to provide them the funds, or they will go for the debt security issuance in the form of the bonds or debentures. So ये decision किसने करना है? Board of directors ने करना है. And then the controlling the functions, managers are responsible to control the employees of the business organization, whereas the board of directors basically controls the managers of the business organization. I hope it is clear. Yes, sir. सर यानी कि जो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पिरामिड है उसमें टॉप लेवल पे जो स्ट्रेटेजिकल लेवल पे जो होगा वो होगी गवर्नेंस होगी जी बिल्कुल ऐसे और जो मिडिल लेवल पे प्लानिंग होगी, जो मतलब टॉप लेवल पे जो वो गोल्स डिसाइड करेंगे स्ट्रेटेजिकल, वो गवर्नर्स डिसाइड करेंगे, और उन गोल्स को मीट करने के लिए जो प्लान बनाएंगे वो मैनेजर्स। जी बिल्कुल ऐसे। और जो नीचे मिडिल लेवल बॉटम लेवल पे फिर ऑपरेशनल एक्टिविटीज वगैरह होती हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये देखें ना, अगर आप रिकॉल करें, हमने स्टार्ट में इससे रिलेटेड जो है ना डिस्कशन की थी। इफ आई गो बैक, ये अगर इसको रिकॉल करें, हायरार्की ऑफ कंपनी, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स एट द टॉप, दे विल अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. These board of directors are responsible to report the shareholders, but they will control the managers of the business organization. Then this management is being appointed by the board of directors, and they will report to the board of directors. So hierarchy में clear है कि directors are in between the shareholders and the managers. They are reporting to the shareholders, but they are at the same time supervising the management of the business organization. ठीक है जी? जी शाबान। बस सर वो मैंने बता दिया, वो जो पिरामिड था। ठीक है। ये जो अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि गवर्नेंस बेसिकली प्रोवाइड्स दी स्ट्रेटेजिक फंक्शन. स्ट्रेटेजिक फंक्शन मींस दैट दे प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Governance is involved with the setting of the objectives to achieve those strategic goals, and then they devise the plans to achieve these objectives. Setting the rules or the parameters, there's another perspective of the governance. They are not directly concerned with the routine affairs. वो managers का काम है, board of directors का नहीं है. And they protect the interest of all the stakeholders of the company. सिर्फ shareholders के interest protect करना इनका काम नहीं है, बल्कि सारे के सारे जितने stakeholders हैं उनके interest को protect करना है. ठीक है, उसमें कुछ representative directors भी होते हैं, कुछ नॉन रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर भी हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव यही होता है कि जितने भी stakeholders हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए. Whereas the management, they are concerned with the current and operational affairs of the business organization. They take directions from the board and implement it. They are concerned with the implementation of the plans that has been approved by the board of directors, and they develop suggestions, and they are involved in the developing the suggestions and the alternatives. So they act as a support function to the board of directors. और नीचे जो implementation जो है ना task है वो management का जो है वो काम है. Then there are different approaches to the corporate governance. Any idea about this? What is shareholder approach? इसमें सर सिर्फ शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से जो है ना वो काम करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Very good. बाकी स्टेक होल्डर्स According to shareholder approach, जैसे हम वो करते हैं ना फाइनेंस के अंदर डिस्कस करते हैं, role of the manager, finance manager is to improve the shareholders wealth. ऐसी बात करते हैं ना. तो उसका मतलब क्या है कि
we are only, the management or the board of directors is only responsible to serve the shareholders of the business organization. उनकी profit maximization की बात करनी है, उनकी wealth maximization की जो है ना वो बात करनी है, बाकियों का कोई concern नहीं है. जबकि stakeholders approach क्या कहती है? ये सर सारे ग्रुप्स के जो है ना उनके सारे जितने भी सारे stakeholders हैं states सब के फाइन ओपिनियन ले लेंगे सर. ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे शुड सर्व दी और दे शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. सिर्फ शेयर बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स को भी क्या करें, वो प्रोटेक्ट करें. ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे स्टेक होल्डर थ्योरी है. स्टेक होल्डर थ्योरी पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिफरेंट थ्योरीज हैं. उसके अंदर एजेंसी थ्योरी है कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट. एक स्टूअर्डशिप थ्योरी होती है, वो क्या है? सर जैसे अपने राइट्स को डेलीगेट किया जाता है अपने किसी के आप जो है वो मींस के वेल्थ के लेके रिसोर्सेज किसी का यूज करके उनको वो करना, मैक्सिमाइज करना. नहीं, यहाँ कर सकते, थोड़ा सा उसका डिफरेंट है. देखिए, एजेंसी थ्योरी में क्या है कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स. जबकि स्टूअर्डशिप थ्योरी क्या कहती है कि मैनेजर्स बेसिकली एक्ट्स एज स्टूअर्ड्स टू द शेयर होल्डर्स. मींस द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजर्स एंड द शेयर होल्डर्स इज अलाइंड. ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये नहीं होता. उन दोनों के इंटरेस्ट एक ही होते हैं, वो दोनों जो है इंटरेस्ट अलाइन होते हैं. और वो जो मैनेजर्स हैं वो एक्चुअली जो अपने इंटरेस्ट को जो है ना वो सर्व कर रहे होते हैं. तो वो इंटरेस्ट सर्व करने का मतलब है कि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को जो है ना वो सर्व कर रहे हैं. Then there is another theory which is stakeholder theory. Stakeholder theory says that the managers not only serve the interest of the shareholder, rather they serve the interest of all the stakeholders of the business organization. बिल्कुल इसी तरह से ये stakeholder approach क्या है कि board of directors should act in favor or they should protect the rights of all the stakeholders of the business organization. लेकिन ये बड़ी ideal approach है कि आप सारों के इंटरेस्ट को जो है ना वो सर्व करें. अब देखें, मिसाल के तौर पे ऐसा है कि अगर फॉर इंस्टेंस जो है ना मैनेजर्स वगैरह को बोनसेस और वो आप पर्स और बेनिफिट ज्यादा देंगे तो यू विल बी हैविंग लेस प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरीके से अगर सारे का सारा पैसा आप डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को देना शुरू कर दें तो री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रहेगा. जब री इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी. जब ग्रो नहीं करेगी तो एम्प्लॉयज उससे बेनिफिट नहीं लेंगे. तो इसका मतलब है शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देते हैं तो जो आपके मैनेजर्स हैं वो उनको इंसेंटिव कंप्रोमाइज होते हैं. इनको बेनिफिट देते हैं तो शेयर होल्डर्स के जो रिटर्न है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है ना वो कम हो जाती है. तो सारे स्टेक होल्डर्स को तो नहीं किया जा सकता. इसी तरह से अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो अगर आप कम्युनिटी को सर्व करने की बात करने लग पड़े तो वो कहते हैं कि जो है ना वो घोड़ा अगर जो है ना वो घास से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या. तो वो वाली बात है कि अगर आप कम्युनिटी को सर्व करने शुरू कर देंगे तो प्रॉफिट टेकिंग कहाँ से आएगी. तो प्रॉफिट तो आपने जो है ना वो जनरल पब्लिक से कमाना है. तो जब उन्हीं की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, उन्हीं का सोचेंगे, तो फिर प्रॉफिट टेकिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगी. तो और अगर प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे तो उनके इंटरेस्ट जो है ना वो जो है वो उसके ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम आएगी. तो इस तरह से ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स के राइट को साइमल्टेनियसली सर्व शायद नहीं किया जा सकता. तो इस सिचुएशन के अंदर ये है कि देयर इज एनलाइटेंड शेयर होल्डर्स अप्रोच. एनी आइडिया अबाउट दिस वन? व्हाट इज एनलाइटेंड? जी, anyone? Enlightened shareholders approach. Enlightened shareholder approach is that the board of directors should act in the interest of the shareholders without damaging the interest of other stakeholders. ठीक है, प्राइमरीली वो किसको उनको सर्व करना चाहिए? शेयर होल्डर्स को. लेकिन उनको सर्व करते हुए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को डैमेज नहीं करना. ठीक है जी. तो पहली वाली और इसमें क्या फर्क हुआ? शेयर होल्डर अप्रोच और एनलाइटेंड शेयर होल्डर अप्रोच में क्या फर्क हुआ? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर अप्रोच एंड एनलाइटेंड शेयर होल्डर अप्रोच?
सर उसमें सिर्फ आपने ये बताया था ना कि सिर्फ शेयर होल्डर के अप्रोच से हम देखेंगे, सिर्फ शेयर होल्डर का बेनिफिट देखेंगे, ये ठीक, अप्रोच थी इसकी। बिल्कुल इसमें सही। ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को नहीं देखना, बल्कि जो ऑल एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी उन्होंने फोकस करना है। ठीक है, तो फिर स्टेक होल्डर और इसमें क्या फर्क हुआ? सर बेसिकली जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि शेयर होल्डर्स अप्रोच में जब वो काम करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो फिर ये नहीं देखेंगे कि किसी और का इंटरेस्ट उससे डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेरी गुड। उनका सिर्फ वो फोकस कौन फुली होंगे? कंसंट्रेट करेंगे शेयर होल्डर्स की तरफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और जो एनलाइटन में वो शेयर होल्डर्स के उसको इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट उनके लिए तो काम करेंगे, लेकिन साथ ये भी देखेंगे कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट भी जो है ना उनको डैमेज ना करें वो काम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल राइटली सेड। शेयर होल्डर अप्रोच इज just simply focused on the shareholders, that the board of directors would serve the shareholders of the business organization. Stakeholder ये है कि सारे के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके राइट्स को उन्होंने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एनलाइटन शेयर होल्डर अप्रोच के अंदर ये है कि वो सबके राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करने की बजाय वो क्या करेंगे, प्राइमरली फोकस शेयर होल्डर्स पे होगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के राइट्स जो हैं उनको भी डैमेज नहीं होने दिया जाएगा। तो शेयर होल्डर और इसमें सिर्फ फर्क ये है कि शेयर होल्डर अप्रोच इज सिंपली कंसर्न अबाउट शेयर होल्डर्स without considering other stakeholders. But in case of enlightened shareholder approach, the board of directors would take into consideration the interest of the shareholders without damaging the interest of other stakeholders. जी रियाज साहब। We can add one more point, sir. जी जी please। नॉर्मली शेयर होल्डर ने शॉर्ट टर्म शेयर खरीदे होते हैं तो उसका मेन इंटरेस्ट होता है डिविडेंड अनाउंस हो, उसका शेयर की प्राइस बढ़े बिल्कुल और ऐसे। उसको रिटर्न मिले। आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म की निस्बत। बिल्कुल वेयर इज स्टेक होल्डर्स दे वुड लाइक टू रिटेन द रिटर्न या बेनिफिट उसका, और उसको एक्सपेंड करने पे ज्यादा तवज्जो होती है। उनकी डिविडेंड कम दें और पैसा रिटेन करें और कॉरपोरेशन को एक्सपेंड करें, कंपनी को एक्सपेंड करें। इफ दे शेयर these ideas with their shareholder, then shareholder also understand कि लेट्स से इस दफा अभी डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी और एक साल बाद कंपनी का आउटपुट डबल हो जाएगी एक्सपेंशन के बाद, तो उसके शेयर की भी लाइकली है कि वैल्यू डबल हो जाएगी। तो इनलाइटेंड शेयर होल्डर विल एक्सेप्ट इट। अगर शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेट्स एनुअल जनरल मीटिंग में ये नहीं बताया जाता कि क्यों नहीं डिविडेंड दिया जा रहा, तो शेयर होल्डर विल बी डिस्टर्ब आई थिंक। नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट उस साइड पे चला जाएगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी के अंदर बेसिकली शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, असल में ये फिर गिला शिकवा करते हैं जो नॉन फाइनेंस वाले हैं, वो कहते हैं कि फिर आप थोड़ी डिस्कशन उधर चले जाते हैं फाइनेंस वाली साइड पे। इस वजह से इंटेंशनली मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन जो आपने बात की है, चले वो बाकियों के भी थोड़ा सा उसके नॉलेज के लिए, कि बेसिकली whenever you purchase the share of any company, there are two types of returns that you get against that investment. One is the one is considered as, अगर फाइनेंस की टर्म्स में बात करें तो उसको रेवेन्यू गेन कहते हैं। रेवेन्यू गेन का मतलब है जो शेयर्स के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको हम फाइनेंस की टर्म्स में डिविडेंड्स बोल रहे होते हैं। The other one is called as capital gain. कैपिटल गेन का मतलब है कि जो शेयर है उसकी प्राइस में जो इंक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को परचेज किया, 100 रुपीज का शेयर था, आफ्टर 1 ईयर कंपनी ने उस पर 10 रुपीज जो है ना प्रॉफिट आपको दिया, मीन्स 10 रुपीज डिविडेंड दिया। तो एक तो आपको बेनिफिट ये हुआ कि वो 10 रुपीज आपको जो है एज अ प्रॉफिट मिल गया। सेकेंडली, वही जो 100 रुपीज का शेयर है उसकी प्राइस इंक्रीज होकर लेट्स सपोज 125 होगी। तो इसका मतलब ये है कि 100 का शेयर 125 में हो गया, तो इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 से इंक्रीज होकर कितनी होगी, 125। तो टेक्निकली स्पीकिंग 10 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल गया जो कि आपका रेवेन्यू गेन है, और 25 रुपीज अगर आप शेयर को सेल करते हैं तो उस पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो आपका कैपिटल गेन है। तो जनरली जो रियाज साहब बात कर रहे थे वो होता इस तरह से है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पोर्शन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, बाकी को वो रिटेन कर लेती हैं फ्यूचर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी या री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी। अब अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं देती तो शेयर होल्डर्स पे खफा होते हैं कि हमें तो रिटर्न नहीं मिली।
लेकिन अगर कंपनी उसी को री इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो पैसा री इन्वेस्ट होगा बिजनेस में तो बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा। तो ग्रो होने पे जो अल्टीमेट बेनिफिट है अभी तो नहीं मिला, लेकिन आने वाले फ्यूचर टाइम में आपको जो ना मिलेगा, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, दैट इज अ सेपरेट पर्सपेक्टिव। वो तो शेयर होल्डर्स की हम कर रहे हैं, यहाँ हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि शेयर होल्डर्स अप्रोच ये है कि दैट the board of directors should only serve the interest of the shareholders. Stakeholder means that they should serve the interest of all the stakeholders. Whereas enlightened approach is that they should serve the interest of the shareholder, but not damaging the interest of other stakeholders of the business organization. And obviously, which one would be considered as the best approach? सर आइडियल तो वैसे स्टेक होल्डर्स अप्रोच है, अगर लेकिन हो वो तो। रियलिस्टिक नहीं है लेकिन ना। जो यस रियलिस्टिक नहीं है, हाँ, एनलाइटेंड शेयर होल्डर्स एनलाइटेंड अप्रोच एनलाइटेंड एनलाइटेंड होगी सर, जी, जिसमें दोनों एनलाइटेंड इनलाइटेंड शेयर होल्डर अप्रोच ज्यादा बेटर है। एनलाइटेंड ज्यादा है, क्योंकि जो सिर्फ शेयर होल्डर अप्रोच है वो सिर्फ एक स्टेक होल्डर को स्पेसिफिक है, बाकी जाए डैमेज होते रहे उन्हें कोई परवाह नहीं है, सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेक होल्डर्स है तो बड़ी आइडियल, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है जो है ना उसमें। ठीक है ना, कि जब आपने बिजनेस करना है और साथ आप कहें जी कि हमने किसी से प्रॉफिट भी नहीं लेना, तो फिर बिजनेस तो नहीं चल सकता जो है ना उसमें, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है जो है उसमें। ठीक है, या अगर आप ये कहें जी कि हम दूसरों को ही फेवर देने के लिए जो है ना वो करेंगे, तो फाइनेंसिंग में जहां उनका बेनिफिट है उसमें तो जैसी बात है, लेंडर तो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हाई हो जाएगी, तो प्रोजेक्ट आपके लिए अनवायबल हो जाएगा। तो वो रियलिस्टिक नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है उसको जो है ना वो लेके चलना। तो एनलाइटेंड शेयर ऑर्डर अप्रोच इज more appropriate as compared to the other ones. So these were the three approaches of corporate governance. Then there are different corporate sins. One is the sloth. Sloth is the unwillingness to take initiative or risk, prefer status quo, be lazy. With due respect, generally जो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो जो गवर्नमेंट जो कल्चर है उसके अंदर इस किस्म की जो है ना सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। दे आर अनविलिंग टू टेक इनिशिएटिव और रिस्क। भाई हमें क्या जरूरत है कोई इसको जो है ना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, हमें क्या जरूरत है कि एक नया काम करने की जो है ना, बस ना करके भी तनख्वाह मिल रही है, कम करके तनख्वाह मिल रही है, तो वाई टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मसला ये है कि अगर कल उसमें कुछ गड़बड़ भी होगी तो अप्रिसिएशन तो दूर की बात है, वो भी सारा जो है ना गुनाह अपने होगा जो है ना सर पे, तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉर्पोरेशन जो स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं या गवर्नमेंट ओन कंपनी या स्टेट ओन कंपनीज हैं, उनमें एक ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वो ये है कि पीपल आर अनविलिंग टू टेक इनिशिएटिव और रिस्क। दे ठीक है प्रेफर स्टेटस को, लेट द थिंग्स रोल ओवर इन द वे दैट दे आर, लेजी रहे, बस ठीक है देख लेंगे कर लेंगे कोई चीज है। Then there is another sin which is known as greed. That is putting your self-interest over the interest of the corporation or the company. ठीक है जी, वही जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात थी कि पर्सनल जो इंटरेस्ट है उनको आप जो है ना वो प्रायोरिटी दे दें ऑन दी इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन। देन फियर नॉट एनॉय और स्टैंड अप टू एनी स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर और बॉस, कि किसी को हमने खफा नहीं करना जो है ना उसमें, कोई किसी की दिल आजारी ना हो जो उसमें। So these are some of the problems or the sins that occur in the corporations. ठीक है जी, एजेंसी थ्योरी क्या है? What is agency theory? Conflict between principal and agent. between principal and agent. Just between the managers and the shareholder जो है ना. Does it applies to the company? सर ये एजेंसी थ्योरी का बताइएगा सर। Agency theory refers to the agency problem, that there are two parties in the business organization. One is the principal, the other one is the agent. ठीक है, agent works on behalf of the principal. So technically speaking, principals are the owners or the shareholders of the business organization. Agents are the managers of the business organization. So sometimes what happens is that there is a conflict of interest between the managers and the shareholders. So agency theory reflects that there could be
conflict of interest between the managers and the shareholders because sometime manager acts in their personal interest. जो last time हमने ये जो बात की है ना, greed वाली. So sometimes there is greediness कि managers are going for higher bonuses, तो वो चाहते हैं कि dividends कम दे दिए जाएं, bonus ज़्यादा हो जाएं, तो conflict of interest आ जाएगा जो है ना उसमें. कोई investment decision करना है तो शेयर होल्डर्स का एक परस्पेक्टिव डिफरेंट है, वो उस पर रिटर्न ज्यादा चाह रहे हैं, मैनेजमेंट सेफ प्ले करना चाह रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो आ जाएगा. तो डज इट अप्लाइज टू द कंपनीज? सर वॉचडॉग जो है वो डायरेक्टर्स है सर? जी कंपनी अप्लाई. जी बिल्कुल, वो आते हैं उस पर बात करते हैं जो है ना इसमें. डज इट अप्लाइज टू द कंपनी? कंपनीज में भी एजेंसी प्रॉब्लम आती है? Yes, sir, it is applied. बिल्कुल आती है, क्योंकि ऑनरशिप और कंट्रोल आती है सर, है, बिल्कुल आते हैं सर. तो मसला होता है. अब ये टू पार्टी मॉडल कौन सा है? सर ये 2 पार्टी प्रिंसिपल और एजेंट का होगा. वेरी गुड, जो है ना टू पार्टी मॉडल ये है एजेंट. एजेंट. और ये 3 पार्टी Agent. मॉडल क्या है? सर इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे जो वॉच डॉग के बारे में बताया. डायरेक्टर. ठीक है जी. तो अब ये 3 आपकी जो है ना वो यहाँ पे टीयर्स क्रिएट होगी. देयर इज प्रिंसिपल, देन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन देयर आर शेयर होल्डर्स, एजेंट. सर एक बात कर सकता हूँ मैं? जी जरूर करें. सर ये वॉच डॉग्स क्यों कहते हैं? सेफ गार्ड्स भी तो कह सकते हैं. आप सेफ गार्ड कह लें यार. बड़ा मतलब एक आपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी किया और फिर आप उनको कंपेयर भी काम कर रहे हैं. नहीं, आप उसको सिर्फ डॉग के साथ जो है ना वो कंसीडर ना करें ना. वॉच डॉग का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं लुक आफ्टर करने के लिए. जितने भी ऑडिटर्स हैं उनको भी वॉच डॉग्स बोला जाता है. ठीक है, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनको गलत पर्सपेक्टिव में बोला जाता है. वॉच डॉग इन द कॉन्टेक्स्ट के वो सुपरवाइजरी रोल जो है ना प्ले करते हैं, वो एक जो है ना ओवरसाइट फंक्शन जो है ना वो प्ले कर रहे होते हैं ओवर द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इफ यू फील इट इज अनअप्रोप्रिएट तो आप बेशक इसको जो है ना वो सेफ गार्ड जो है ना वो बोल दें. वी डोंट हैव एनी इशू जो है. ठीक है जी. ओके जी. There are some key issues that are being discussed in the corporate governance. Later on, we will discuss them in detail. There are some chapters, financial reporting, कि ये जो आपकी books of accounts है, उसके अंदर ये जो financial जो चीज़ों की manipulation होती है, books of accounts को जो है वो creative accounting use करके अच्छा represent किया जाता है, या उसमें better picture जो है ना show की जाती है, उसको कैसे जो है ना किया जा सकता है, रिप्रेजेंट जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है. डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होगी तो वो कंपनी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है, अनबायस्ड डिसीजन नहीं देंगे. ठीक है ना, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं देंगे. और अगर रिम्यूनरेशन कम होगी तो उनका कुछ स्टेक ही नहीं होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. रिस्क मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे जो है ना वो कंपनीज के रिस्क एक्सपोजर को जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं? उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है मैनेजमेंट के साथ और शेयर होल्डर्स के साथ? और कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, वो सोसाइटी को कैसे बेनिफिट दे सकती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कैसे इंश्योर करेगी? So these are the key things that are being discussed in the corporate governance. And then there is a question that arises, why should we study corporate governance? We should study it because better corporate governance leads to the improvement in the capital market and economy as a whole. Obviously बात है, अगर कॉर्पोरेशन अच्छे तरीके से गवर्न होंगी, लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होंगे, तो more people would like to invest in the corporations. So when they would invest more in the corporations, तो what would happen is that the capital market would grow, और कैपिटल मार्केट के ग्रो करने से आपकी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी जो है ना उसमें, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ द योर इकोनॉमी जो है ना जो स्टॉक मार्केट है. Why it is importance? Management books talks only about profits. जो हमने बात की थी कि रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर क्या होता है? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बात करती है कि वी शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, प्राइमरीली shareholders but also the other stakeholders of the business organization. And then since company is a social asset, एक
कंपनी जो है जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है उनके लोगों का हक है उस मुल्क के ऊपर जो है ना उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू अ सोसाइटी और वो जो सोसाइटी है उसको जो है ना उसको सर्व करना या उसको बेनिफिट पहुंचाना उस कॉर्पोरेशन का हक है। जो जनरली होता भी है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है ना कम्युनिटी को दे रहे होते हैं। बट अगेन ऑन द अदर साइड इट वुड शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है ना उसमें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू द बेटर मैनेजमेंट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट्स एज अ सुपरवाइजरी रोल। तो बिकॉज ऑफ देयर सुपरविजन व्हाट हैपेंस दैट द मैनेजर्स एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। बाय एंड लार्ज द पर्सपेक्टिव इज लाइक दैट। So if there is good corporate governance, there is good corporate governance mechanism or good corporate governance practices. So obviously the board can perform in a better way, and ultimately the management would also perform well. Then good reputation is a good business. जाहिर सी बात है, वो कहते हैं बद से बदनाम बुरा। अगर आपके बदनाम हैं तो जो उससे बुरा भी जो है ना वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो सोसाइटी के अंदर आपका सर्वाइवल जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। So obviously the companies which are better governed would carry a better reputation. The companies which are serving the society, which are performing these corporate social responsibility would have a better image in the society. Automatically उनकी जो business है वो भी improve होगा। Then it's support to the capital market, जैसे हमने कहा था कि corporate governance से अगर shareholder का confidence increase होगा या stakeholders का confidence increase होगा, so they would invest more in the corporations. So when they would invest more in the corporations, automatically the capital markets would improve and everyone wins. तो अब सोसाइटी को जो बेनिफिट हो रहा है, लेंडर्स को बेनिफिट हो रहा है, कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है, सप्लायर्स को बेनिफिट हो रहा है, शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट हो रहा है, तो एवरीवन इज ठीक है एट द विनिंग स्टेज। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच जी। दिस इज द एंड ऑफ द सर स्लाइड्स शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, मैं शेयर कर देता हूँ। आपको ग्रुप में अभी शेयर कर दूं? जी सर, ग्रुप में कर। मैं ग्रुप में शेयर कर सर अभी जो रिसेंटली सर जो अभी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है इस पे अभी तो माशाल्लाह काफी काम होना शुरू हो गया और अभी काफी सारी कंपनीज इस साइड पे आना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। बट स्टिल देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना जो आप इस जो सिविल सर्विस वाले हैं जो उसमें जो सर उसकी वजह ये है ना कि जो लेजिस्लेशन लोग करते हैं पार्लियामेंट में, वो सारे इन्वेस्टर्स ही होते हैं और वो सारे अपने इंटरेस्ट के लिए लॉ बनाते हैं, बिल्कुल सिर्फ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी बात में सर हमारे जो सर यूसुफ अजहर गिलानी साहब जो है वो जीत गए हैं। अच्छा, उन्होंने जो है ना शेख हफीज साहब को हरा दिया। इस बारे में बात नहीं करते। इट्स अ पॉलिटिकल डिस्कशन दैट विल स्टार्ट। जो है ना हमारे पीटीआई के भी बहुत सारे भाई बहने हैं जो रिपोर्टर होंगे, जो ना उनकी दिलाजारी नहीं करनी चाहिए। Thank you very much जी for participative session. Hopefully everything is clear, but still if you find something not clear or which needs to be discussed, so we can discuss it in the Thank you, part of sir. the session inshallah। तो जो आज के सर एक्सक्यूज मी सर, अटेंडेंस नहीं। जी अटेंडेंस हो चुकी है आपकी।